आप सर्वे यान वाला ने એ જ વિનંતી કે પ્રોડક્શન ને નવા નવા યાનો બનાવી, અહીંયા ઘણા પ્રકારના નવા યાનો છે અને નવા યાનો બનાવી અને એને આપણે પ્રોગ્રેસ 2030માં કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ અને એને ક્યાં લઈ જઈ શકીએ છીએ તેના પર ફોકસ કરીએ આપણે. ભારત વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગમાં નોંધપાત્ર યોગદાન સાથે વિશ્વમાં યાનના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે. સુરતની વાત કરીએ, સુરત ભારતના કુલ MMA ફેબ્રિક્સમાં લગભગ 65% ફાળો આપે છે, જે તેને ભારતમાં સિન્થેટિક ટેક્સટાઇલ સૌથી મોટા કેન્દ્રોમાંનું એક બનાવે છે. સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ગ્લોબલ માર્કેટ અને નાના તથા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા યાનનું ઉત્પાદન કરવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. વર્ષ 2030 સુધીમાં સુરત 30થી 35% ટેક્સટાઇલ વેસ્ટનું હાઈ ક્વોલિટી યાનમાં રિસાયકલિંગ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં સર્ક્યુલર ઇકોનોમી માટે નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે. આજે જ મારી એક એક્ઝિબિટર સાથે વાત થઈ કે આ હવે એકાદ વર્ષની અંદર તમને રસ્તામાં કે કોઈની ત્યાં પેટ બોટલ જોવા મળશે નહીં ખાલી, કારણ કે આજે બધા જ રિસાયકલ યાનમાં એનો પેટ બોટલનો ને એનો રિસાયકલનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મેં એક એક્ઝિબિટર સાથે તો એવી પણ વાત થઈ કે આ જ પેટ બોટલમાંથી પાછી પેટ બોટલ બનાવીને 25% પેટ બોટલ બનાવીને બાકીનો એને અમે યાનમાં લઈ જઈએ, એ પ્રોસેસ અત્યારે એ લોકો હાથ પર ધરેલો છે. એટલે આમાંથી જ પાછી પાણીની બોટલ બનાવવાનું પણ વિચારી રહ્યા છે. એટલે યાનમાં આપણે 2030માં કયા સ્ટેજ પર પહોંચીએ, એક્સપોર્ટમાં આપણે ક્યાં જઈએ અને આ યાન એક્ઝિબિશનમાંથી મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન આપણે જલ્દી પૂરું કરી શકીએ કે જે $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ડોલરની એક્સપોર્ટ અને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી અને ત્રીજા નંબરની અર્થતંત્રને, દેશના અર્થતંત્રને ત્રીજા નંબર પર લઈ જઈએ. માટે યાનમાં વધુમાં વધુ આપણે સારી ક્વોલિટી, એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી અને નવા ડેનિયરો, નવી ક્વોલિટીઓ, સિલ્ક બેઝની ક્વોલિટી, કોટન બેઝની ક્વોલિટી, જે કોટન ને સિલ્કનું રિયલ ફીલ આપતી હોય એવી ક્વોલિટીઓ આપણે બનાવીએ અને હજુ ઉદ્યોગને આગળ લઈ જઈને 2030માં એને સર્વોચ્ચ સ્થાને પહોંચાડીએ એવી સૌને શુભેચ્છા સાથે ફરીથી આપનું આ સર્વેનો આ સેમિનારમાં હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. અને પાન સાહેબને અને બીજા વક્તાશ્રીઓને આપણે સાંભળીએ અને જે કોઈ ક્વેશ્ચન અને પ્રશ્નતારી હોય તે આપણે આપણા મનની જે વિગા હોય તે પૂછીએ અને ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં આપણે સારી રીતે પ્રશ્નો પૂછીને આપણા મનનું નિરાકરણ કરીએ. આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરવી. थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला. दोस्तों, इस कार्यक्रम को हम किस तरह से चलाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो बारी बारी अपना वक्तव्य देंगे, अपने विचार प्रदर्शित करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ताकि सबको साथ में जो भी सवाल है हम पूछ सकते हैं. तो हर स्पीच के बाद हम क्वेश्चन आंसर नहीं रखेंगे. दैट 10 मिनट्स 15 मिनट्स वी विल स्पेयर एट द लास्ट, हम लास्ट में करेंगे. हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर आज हमारे यहाँ भी हमारे बीच मौजूद है, हम सबका एक बुके से और उनको मोमेंटो के साथ हम यहाँ पे उनको स्वागत करना चाहेंगे. तो मैं प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला और सारे मंचस्थ ऑफिस बेरर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका बुके और मोमेंटो से स्वागत करें. सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा रिलायंस के श्री असीम पान जी को कि भाई वो मंच पे उपस्थित और हाजिर. दोस्तों, टेक्सटाइल सिटी में जो बुके हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये फ्लोरल बुके नहीं है, ये साड़ी से बना हुआ बुके है और ये ट्रेंड हमने यहाँ पे शुरू किया है. इमरजेंसी प्लीज ज्वाइन देम. श्री संजय मल्होत्रा जी, संजय मेहोत्रा जी, प्लीज ज्वाइन देम इन ऑफरिंग बुके एंड मोमेंटो. दोस्तों, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. आने वाले कल के लिए आपको तो ये लोग प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन इन्हें प्रोत्साहित करना वो आपका काम है. श्री महेश माहेश्वरी जी, मृणाल भाई, सभी ऑफिस बेरर्स को रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें बुके और मोमेंटो से उनका स्वागत करें.
महेंद्र जड़फिया जी। देखिए, जिसमें जितनी ताली ज्यादा बजी होगी वो उतना अच्छा बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल एग्जीबिशन कमेटी चेयरमैन विजय भाई को रिक्वेस्ट की वो भी मंच पे उपस्थित हो, क्योंकि आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो यान एक्सपो के अंतर्गत हो रहा है और ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें सारे एग्जीबिशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, 2024 चल रहा है और हम बात करने जा रहे हैं 2030 की इमर्जिंग ट्रेंड इन यान बाय 2030। इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों ये कार्यक्रम, इसकी बात करने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा को चेयरमैन GFRRC SGCCI से श्री उमेश कृष्णानी जी को कि वो आके ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट विजय भाई, निखिल भाई, मृणाल शुक्ला, विजय जरीवाला और स्पीकर्स श्री असीम पान, श्री मल्होत्रा, महेश भाई महेश्वरी, महेंद्र कुमार जड़फिया, and all our committee members, and above all, my dear audience. आज का जो प्रोग्राम है वो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन यान्स है और उसके लिए हमारे पास ऑल द फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन, इनके एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। जैसे मिस्टर असीम पान है, ही इज एक्सपर्ट्स इन पॉलिएस्टर, मल्होत्रा जी हैं वो नायलॉन के एक्सपर्ट हैं, कॉटन फैंसी यान के लिए महेश भाई हैं और जरी के लिए महेंद्र भाई जड़फिया हैं। तो अबाउट द यान, पहले सिर्फ कॉटन ही इतना प्रिवेल करता था, कॉटन वाज द किंग ऑफ द फैब्रिक। उसके बाद पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, वूल, बहुत सारे यान आते गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिएस्टर में भी इतने सारे मॉडिफिकेशन आके इतने सारे यान हो गए कि आज हम टेक्निकल टेक्सटाइल है, मेडिकल टेक्सटाइल है, जियो टेक्सटाइल्स है, ऐसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आने वाले टाइम में इसके और एडवांसमेंट आएंगे, क्योंकि जो टेक्सटाइल का यूज़ है वो फैब्रिक या कपड़े से ऊपर जाके इतना बढ़ गया है, जैसे कार, टायर, रोड, एवरीवेयर वी आर गेटिंग यूज ऑफ द टेक्सटाइल्स, मेडिकल, ये सब जगह पे। उसका डिटेल जो नॉलेज है, डिटेल उसका आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ उसका यूज़ होने वाला है, that is the subject of today's seminar, that is emerging trend of yarns in 2030. हमारे जो स्पीकर्स हैं they are since so many years, मैं इनको सबको ऑलमोस्ट जानता हूँ, they are more than 35 years in this field। और हमारे जो यहाँ पे एक्सपो में जो यान एग्जिबिट किए हैं वो भी इतने सारे यान हैं कि कल मुझे कोई बता रहा था कि वो तो पिछले साल वाले ही यान है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम पूरा 3 दिन भी इधर विजिट करोगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर और फाइंड आउट कि कितने यान से इसमें, क्योंकि आज यान का जो अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि कोई एक फील्ड का भी, फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी यान का बोलो तो भी सबको पता नहीं है कितने सारे डेनियर उसमें आ रहे हैं। सो रिगार्डिंग द यान द नॉलेज इज वेरी वाइड, और इट्स नॉट दैट कि हाँ पिछले साल देखा है वही स्टॉल होगा, आगे रिलायंस का होगा, पीछे उसका होगा, इट्स नॉट दैट। अगर आप उसको जाके अंदर स्टॉल में जाके सबको यान को देखेंगे, उसका एंड यूज पूछेंगे, तब पता चलेगा कि भाई हम
which yarn we should use और कहाँ ये फैब्रिक इंडस्ट्री जा रही है. So not speaking much about these things, I will request now Srijalben to speak about our GFRRC. Thank you. फैब्रिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर, ये एक चैम्बर का इनिशिएटिव है फॉर बेटरमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो यहाँ पे हमारे पास एक फैब्रिक स्टूडियो है, फैब्रिक लाइब्रेरी है. जैसे हमने बुक्स की लाइब्रेरी देखी है वैसे फैब्रिक की लाइब्रेरी है. मोर देन 1000 फैब्रिक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, विस्कोस, बहुत सारे फ्रॉम इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं. अगर उसको किसी को उसकी डिटेल चाहिए, सोर्सिंग करना है तो सोर्सिंग डिटेल प्रोवाइड करते हैं. अगर किसी को बनाना है और उसकी टेक्निकल डिटेल चाहिए तो टेक्निकल डिटेल प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा हम GFRRC में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम इंक्वायरीज जनरेट करते हैं. कोई इंक्वायरी आती है तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सेमिनार्स जैसे आज हो रहा है एक सेमिनार, वैसे डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं. साल में हम टेक्सटाइल वीक करते हैं. सो पूरे वीक में टेक्सटाइल से जुड़े सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम सेमिनार्स आयोजित करते हैं. इसके अलावा हम यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं. टेक्सटाइल वैल्यू चेन, मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी, फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर नेटिंग, वीविंग में एडजेट वीविंग, रैपियर वीविंग, वाटर जेट वीविंग, ये सारे कोर्सेज हम यहाँ GFRRC में करवा रहे हैं. इसके अलावा नॉन टेक्सटाइल्स, हम ये नहीं बोल सकते नॉन टेक्सटाइल्स, बट इट इज़ जनरल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, पावर ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज भी बहुत रेगुलरली होते हैं. ये हमारी नानपुरा ब्रांच जो है चैम्बर की, वहाँ हो रहे हैं. इसके अलावा हमने एक नई फैसिलिटी चालू की है, दैट इज यार्न एंड फैब्रिक टेस्टिंग फैसिलिटी. टेक्निकली हम ये बोलते हैं कि हम यार्न का एक कंस्ट्रक्शन एनालिसिस आपको करके देते हैं, यार्न एंड फैब्रिक का. सो ये भी नानपुरा में अवेलेबल है. इसके कलेक्शन सेंटर्स भी है. सो दिस ऑल आर अबाउट GFRRC. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन अबाउट GFRRC में. यहाँ पे जितने भी लोग अगर सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स नहीं है, सदस्य नहीं है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप उसके सदस्य बनिए और हमारे जो इनिशिएटिव है GFRRC जैसे, उस इनिशिएटिव का पूरा फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए और हमारी इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने में आप सबका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होगा. दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज के हमारे जो स्पीकर है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महेंद्र झड़फिया जी से और उनका परिचय देने के लिए मैं फिर से आमंत्रित करूँगा हमारे को चेयरमैन GFRRC उमेश कृष्णा जी. मैंने जैसे आपको बताया कि आज हमारे पास ऑल द एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कॉटन और जरी. तो सबसे पहले आपके सामने अपना स्पीच देंगे वो है मिस्टर महेंद्र कुमार झड़फिया. महेंद्र कुमार झड़फिया इज द MD एंड CEO ऑफ एडलॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड. एडलॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो वाइडेस्ट रेंज ऑफ जरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. एडलॉन मैन्युफैक्चरिंग जरी ऑल टेक्सटाइल मशीन्स लाइक पावरलूम, जैकार्ड, रेपियर जैकार्ड, वाटर जेट, एयर जेट, एम्ब्रॉयडरी, सिफली, फ्लैट एंड सर्कुलर नीडिंग के लिए जरी बनाती है. उनका प्रोडक्शन 10 डेनियर से 15 डेनियर सुपरफाइन जरी एटॉमिक प्रोडक्ट ऑफ एडलॉन इंडस्ट्रीज है. एडलॉन इंडस्ट्रीज विल बिकम इंडियाज फर्स्ट ओकोटेक्स सर्टिफाइड कंपनी within 2 months and become global standard jari manufacturing compared to US and Japan. Aditya Birla, Raymond, रामराज, पोथी, सतलेज, GM, ओसवाल, वर्धमान इनके कस्टमर हैं. ज़ारा, सेफोरा like Europe based brand is also customer of एडलॉन जरी प्रोडक्ट. इनका 100% जो प्रोडक्शन है वो मेड टू ऑर्डर होता है. एंड टिल 2025 एडलॉन विल बिकम द ग्लोबल मार्केट लीडर इन जरी इंडस्ट्रीज. सो आई रिक्वेस्ट Sri Mahendra Kumar Zharafia to give his speech. Thank you. हेलो,
આઈએસ પર બિરાજમાન વિજયભાઈ મેવાવાલા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ SGCCI અને મારી સાથે વક્તાશ્રીઓ અસીમ પાનજી રિલાયન્સમાંથી, સંજય મહોત્રાજી, મહેશ માહેશ્વરીજી અને સાથોસાથ ચેમ્બરની એ ટીમ કે જે લોકોએ આ સરસ મજાનો કાર્યક્રમ આયોજન કર્યો છે એ બદલ અને મને પણ આ કાર્યક્રમમાં બોલવા માટે આમંત્રણ કરવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇમર્જિંગ ટ્રેન્ડ ઓફ ધ જરી ઇન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. જરી જે છે એ વન ટાઈપ્સ ઓફ ધ પોલિસ્ટર યાર્ન. પોલિસ્ટર યાર્નની એક બનાવટમાંથી બનતી આ વસ્તુ કે જે વિશ્વમાં પ્રોડક્ટને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સિમર્સ લાવવા માટે, શાઇનિંગ્સ લાવવા માટે જે યુઝ થાય છે. જનરલી 18મી સદીમાંથી આ જરીનો એક વિસ્તાર વધતો ગયો. સ્ટાર્ટિંગ કરીએ તો રિયલ જરીમાંથી ઇમિટેશન જરીમાં કન્વર્ઝેશન આવ્યું. રિયલ જરી એટલે કે ફક્ત ને ફક્ત એક લિમિટેશનમાં જે પ્રોડક્ટ હતી કે જે ફક્ત ને ફક્ત સારીઝ, ગાર્મેન્ટ, ડ્રેસ એના માટે યુઝ થતી હતી અને એમાંથી વાઇડેસ્ટ રેન્જમાં આ જરી પ્રોડક્ટને વિશ્વ ફલક ઉપર મૂકવામાં ઇમિટેશન જરીએ ખૂબ સારું કામકાજ કર્યું. એક પ્રોડક્ટની જે પ્રાઇસ વેલ્યુ છે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વેલ્યુને કમ્પેર કરવા માટે ઇમિટેશન જરીની એક શરૂઆત થઈ. માન્ય શ્રી નાનુભાઈ વાનાણી, એક્સ મિનિસ્ટર ઓફ ધ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, એમના એક ગુજરાતના આર્થિક ક્રાંતિનું રહસ્ય આ પુસ્તકમાં જરી ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક બહોળો લેખ લખેલો છે. हिंदी ओके. माननीय श्री नानूभाई वानानी हमारे गुजरात के एक्स मिनिस्टर रहे. उसने गुजरात में जो गुजरात की जो आर्थिक क्रांति हुई उसमें सूरत ने क्या पार्ट इंपोर्ट किया उसका एक बहुत अच्छा ये लेख लिखा हुआ है. उसमें जरी इंडस्ट्री का डिटेल विवरण किया हुआ है. ये इंडस्ट्रीज सूरत में ही शुरू हुई और गारमेंट इंडस्ट्री से चालू करके फाइन टू फाइन डेनियस टाइप्स ऑफ द क्वालिटी एंड कलर ऑफ द मेटालिक, उसके ऊपर से डाइवर्सिफाई बिजनेस में ये डाइवर्ट हुई. सबसे पहले जब जरी की शुरुआत हुई वो टाइम पे सिर्फ गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट और ड्रेस, गारमेंट सारी इंडस्ट्रीज में ये कामकाज हो रहा था. उसके बाद जापान, कोरियन और USA में रियल जरी की कंपेयर में प्लास्टिक जरी को एक इनोवेट करके फिर कैसी उसकी प्रोडक्ट बनाई जाए उसके ऊपर संशोधन हुआ. ST टाइप मेटालिक, एक टाइप ऑफ द मेटालिक में एक ST टाइप मेटालिक, M टाइप और ST टाइप मेटालिक में से MH, FX, WX टाइप की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जरी बनाई गई. जो पहले सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्रीज में कामकाज हुआ करता था वो इंडस्ट्रीज वहाँ से शिफ्ट होके होम टेक्सटाइल्स, शूज टेक्सटाइल्स, लिंगरीज, अंडरवियर, शूज, लेस, वो सब इंडस्ट्रीज में अभी जरी का कामकाज चालू हुआ. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले जो कामकाज हो रहा था वो आउट ऑफ द कंट्री में कामकाज हो रहा था. फाइन टू फाइन डेनियर में 0.15, 0.12 एक अर्ट्स में सब आउट ऑफ द कंट्री सब लोग बना रहे थे. लेकिन अभी रिसेंटली ट्रेंड में पाया गया कि यही आइटम हमारे गुजरात में भी बनना चालू हुआ है और मीन्स की सूरत में भी बनना चालू हुआ है. और ये जो आइटम जो बन रही है वो अभी यहाँ सूरत में फाइन डेनियर बन के यहाँ से भी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है. यहाँ से भी ये सब इंडस्ट्रीज में कामकाज कैसे कर सके उसके कंपेयर में ग्लोबल कंपनी के सामने हमारी सूरत इंडस्ट्रीज ने भी ये कामकाज बनाना चालू किया है. जैसे जीरो डेनियर जरी, आपको लगेगा डेनियर तो रहेगा ही, उसमें जीरो डेनियर जरी इन द सेंस कि जो फाइन टू फाइन पॉलिस्टर और नायलॉन का जो डेनियर है वो 10 डेनियर है, 10 डेनियर नायलॉन. तो 10 डेनियर्स नायलॉन के ऊपर भी कवरिंग करके जरी बनाई गई और उसमें भी उसका 55 to 65 काउंट्स में फाइनल प्रोडक्ट बना के फिर उसको गारमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करना चालू हुआ है. तो इसके साथ साथ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में भी जरी की एक खपत का एक नया दौर चालू हुआ है जो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी उसकी एक्सपेक्ट रहती है कि भाई रिसाइकल पॉलिस्टर यार्न के साथ जरी को ट्विस्ट करके फिर भी यूज़ करना सब लोगों ने चालू किया है. नायलॉन और पॉलिस्टर में एक कामकाज चालू हुआ है. एक देखें तो जरी इंडस्ट्रीज की जो शुरुआत है वो गुजरात में, उसकी नींव गुजरात में सूरत में रखी गई. लेकिन बेसिकली कोई स्पेसिफिक उसका जैसे कि डायमंड मार्केट का कुछ डायमंड इंस्टीट्यूट्स है, सब इंडस्ट्रीज का कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट्स है. वैसे जरी मार्केट का, जरी इंडस्ट्रीज का अभी कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट सूरत में या गुजरात में नहीं बना हुआ है. अभी
2020 का जब यहाँ पे विजन रखना है तब मैं पक्का दौर से मानता हूँ कि उसके ऊपर हम कुछ ये करें गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी ये इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा कैसे किया जाए। 2023 तक हम ये इंडस्ट्रीज ये कारीगर ये डेवलपमेंट में अगर कुछ डिटेल्स में हम वर्कआउट करें डिटेल्स में कुछ कामकाज करें तो मुझे लग रहा है कि पान इंडिया में जो खपत है पान इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो हम सूरत में ही बना सके सूरत से ही ग्लोबल मार्केट में हम एक्सपोर्ट भी कर सके। अभी तक ऐसा हो रहा था कि ओकोटेक स्टैंडर्ड जरी जो उसका हार्डनेस केमिकल्स और उसकी वजह से रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा था। शायद मेरे ख्याल से गुजरात में कोई नहीं है कि जो ओकोटेक सर्टिफाइड जरी बनाता हो। हालांकि इंपोर्ट करके बेचते हैं लेकिन कोई बनाने वाले नहीं है। तो हमने एडलॉन इंडस्ट्रीज ने उसका एक इनिशिएटिव लिया है। विद इन द 2 months वी आर द इंडिया फर्स्ट ओकोटेक सर्टिफाइड जरी कंपनी टू बी compete the global market and we do it properly with whatever the global aspect and डेली टू डेली जरी में जो अपग्रेड आ रहा है तो डेली अपग्रेड को पहुंचने के लिए हमारे पास स्किल वर्कर और स्किल वर्क के साथ स्किल इंस्टीट्यूट भी बने। मैं चैम्बर्स को आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस कार्यकाल में हम एक कामकाज करें कि भाई जरी इंडस्ट्रीज का हमारे पास एक इंस्टीट्यूट आए उसमें हम डेवलपमेंट और रिसर्च कर सके और यही रिसर्च और डेवलपमेंट हमको ग्लोबल मार्केट तक लेके जाए। सिर्फ क्वांटम बेस्ड काम की जगह पे कुछ क्वालिटी बेस्ड हम कामकाज कर सके ताकि हमारी एक छाप और भी जरी इंडस्ट्रीज में ग्लोबल मार्केट पे आई। थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर इनवाइटिंग एज अ गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इनके रिलेटेड जो भी अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप लिख के अपने पास रखिएगा। एंड ऑफ दिस सेशन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर अनदर स्पीकर and to introduce him once again I would like to invite Umesh Krishnani ji to introduce our another speaker and I request all the office bearer that we can join in a front row so that we can enjoy their presentation as well. Thank you, Chirag bhai. Friends, now I will introduce our second speaker, Mahesh bhai Maheshwari, जो निम्बार्क के डायरेक्टर है। महेश भाई को कौन नहीं जानता। इंडिया में फैंसी यान की जो पहचान है उसमें निम्बार्क लीडर है। उनके बारे में लोग कहते हैं कि he has the eye of the tiger and vision of an eagle। उनको पिछले 35 साल का डेडिकेशन जो है वो निम्बार्क को यहाँ तक लाया है और he is number 1 in fancy yarn manufacturing। As I told you, महेश भाई चैम्बर से भी बहुत साल से जुड़े हुए हैं और हमारे GFRRC के चेयरमैन गिरधर गोपाल मुंद्रा जी के परम मित्र हैं। सो आई नाउ रिक्वेस्ट महेश भाई टू गिव हिज स्पीच। थैंक यू। GCCI के चेयरमैन श्री विजय मेवावाला जी, श्री चिराग भाई देसाई, मनोहर भाई शुक्ला जी, प्रोमिनेंट स्पीकर श्री असीम प्रेम जी, संजय जी एंड महेंद्र भाई और मेरे प्यारे दोस्तों, फैंसी यार्न की इंडस्ट्री एक अलग ही तरीके से चल रही है क्योंकि आज अगर अपन कहीं भी जाते हैं तो हर व्यक्ति को यही चाहिए कि दूसरों से अलग कैसे दिखूं। जब भी आदमी कभी किसी फंक्शन में जाता है चाहे कहीं अपने आप को प्रेजेंट करता है कहीं ऑफिस में जाता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि मैं अलग कैसे दिखूं और वो अलग दिखने के लिए डिफरेंट टाइप के फैब्रिक ढूंढता है। और वैसे ही अगर अपने पास आप सब व्यापारी भाई लोग हो आपके पास कोई आता तो सबसे पहले ये पूछता है नया क्या है। सबसे पहली बात यही होती है कि नया क्या है। तो नया क्या है ये काम फैंसी यार्न इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से अभी मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी अच्छे से कर रही है। जैसे सूरत में अपने एयर टेक्सटाइजिंग के धागे सबसे पहले काफ़ी अच्छे चल रहे हैं जो फैंसी में चल रहे हैं। फैंसी यार्न लुक से चलता है, फील से चलता है, उसके टेक्सचर से चलता है और कलर से चलता है। तो सबसे पहले लुक में अगर देखें तो एयर टेक्सटाइजिंग में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है सूरत मार्केट के लिए, लेकिन आज जो नई जनरेशन है उसको लुक के साथ फील भी चाहिए। फील के लिए सूरत में स्पन यार्न
आज से करीब मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले ही चालू हुए, बहुत स्पीडली 10-12 साल पहले चालू हुए, और आज ये पोजीशन आ गई कि एक साइड स्पन यार्न चाहिए चाहिए, और हम लोग स्पन यार्न का काम कर रहे हैं। स्पन यार्न में फैंसी यार्न की डिमांड जरूर है, लेकिन स्पिनिंग में हमारे पास काफ़ी डिफिकल्टीज है कई चीज़ें बनाने के लिए। लॉट साइज भी ज़्यादा चाहिए, प्लस हर टाइप का इफेक्ट जो एयर टेक्सचराइजिंग में है वो इफेक्ट दे नहीं सकते। बट अभी कुछ मशीन्स ऐसी बनी हैं जो हमने भी अभी एक प्लांट लगाया है, उसमें एयर टेक्सचराइजिंग टाइप के धागे स्पिनिंग में भी बन रहे हैं, और जो फील का मैटर है वो काफ़ी हद तक अभी दूर हो जाएगा। इफेक्ट, अब तक इफेक्ट के बारे में जब भी बात होती है तो स्लब और नेप्स आ गया तो इफेक्ट हो गया, बट अभी इफेक्ट से ज़्यादा कंसेप्ट की चर्चा होती है कि हम लोग नया कंसेप्ट क्या दे रहे हैं। कंसेप्ट के अंदर बाकी सब धागे तो बन जाएंगे। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो जैसे सिल्क चलता है तो सिल्क से रिलेटेड कंसेप्ट बन गए। फिर अपन लिनन प्रीमियम फैब्रिक में लिनन चल रहा है, तो लिनन के कंसेप्ट से अब धागे बन रहे हैं। तो लिनन का जो लिनन चल रहा है, लिनन अभी पॉलिस्टर में भी बन रहा है। लिनन टाइप का इफेक्ट जो है वो पॉलिस्टर कॉटन बन रहा है, पॉलिस्टर विस्कोस बन रहा है, और लिनन ब्लेंड्स भी चल रहे हैं। तो जो फैंसी यार्न का ट्रेंड है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे लगता है 2030 आते आते फैंसी का एक बड़ा सेटअप हो जाएगा। अभी भी हमारे कई व्यूवर्स हैं जो बोलते हैं कि साहब बनाना तो बहुत आसान है, आपने सैंपल बना तो देते हो, यार्न बना देते हो, लेकिन यार्न लूम पे चलते नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से यार्न का लूम्स का अपग्रेडेशन हो रहा है, आज वाटर जेट है चाहे एयर जेट है, सब हाई स्पीड मशीनें आ रही है, तो उन पे चलने लायक धागा बनाना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज स्पिनिंग इंडस्ट्री को महसूस हो रहा है। तो स्पिनिंग इंडस्ट्री का अपग्रेड वर्जन, फैंसी यार्न का मतलब क्या होता है, जो पुरानी मशीनें हैं उसमें हम धागा बना देते हैं, स्लब ने भी तो बनाते हैं, कुछ इफेक्ट तो देना है, लेकिन हम लोग एक्चुअली फैंसी यार्न की डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन ये है कि जो इफेक्ट क्रिएट करता है वही फैंसी यार्न है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो स्पिनिंग प्लेन यार्न के लिए बनती है जिसमें डिफेक्ट नहीं बनता है, जो टेस्ट रिपोर्ट से माल बिकता है कि सबसे कम इम्परफेक्शन का माल है वो सबसे बढ़िया माल है, और जब हम फैंसी यार्न का इफेक्ट देते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्परफेक्शन का माल सबसे बढ़िया होता है। तो चैलेंज ये रहता है कि वो सेम इफेक्ट हम कंटिन्यूस किस प्रकार दे पाएँ, सेम मिक्सिंग से माल बना पाएँ, प्लस छोटी छोटी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएँ। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसलिए स्पिनिंग इंडस्ट्री में फैंसी यार्न बहुत कम लोग बनाते हैं। हम जैसे बनाते हैं वैसे काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, काफ़ी लोग बना रहे हैं, लेकिन चैलेंज सबके साथ ही यही है कि किस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई दे पाएँ, कंसिस्टेंसी दे पाएँ, यार्न की कंसिस्टेंसी दे पाएँ, सप्लाई कंसिस्टेंसी दे पाएँ। क्योंकि अब नए फाइबर अगर यूज कर लेते हैं तो आज समझो फाइबर लिया, अभी मैं रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस से अगर कोई फाइबर हम डेवलप करा के लेते हैं तो इनको एक दिन का रन 100 टन होता है। हम वो 100 टन फाइबर कैसे ले लें? अगर ले लें तो फैंसी यार्न तो अपनी स्पीड से चलते हैं, 4 से 6 महीने कंसेप्ट को पास होने में लगता है। तो जो 4 से 6 महीने का टाइम है उसमें कंसिस्टेंसी बनाना डिफिकल्ट है, उसके बाद तो कंसिस्टेंसी हो जाती है, जब अवेलेबिलिटी हो जाती है तो कंसिस्टेंसी हो जाती है। अभी जो नई स्पिनिंग मशीन्स आ रही हैं उसमें रेट्रोफिट, मतलब मशीन के साथ ही इफेक्ट क्रिएट करने वाले अटैचमेंट्स आ रहे हैं। उन अटैचमेंट्स पे धागे की कंसिस्टेंसी हम दे पाएंगे। फिर फैंसी में एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमको फाइबर वालों से डील करना रहता है, फिर स्पिनिंग समझो हम या हमारे जितने भी साथी हैं बना लेते हैं, फिर डबलिंग ट्विस्टिंग होती है उसको, उसके बाद में उसकी विविंग के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। विविंग हो गई तो फिनिशिंग, और फिनिशिंग हो गई तो गारमेंटिंग। तो
मेरा इसके बारे में विचार ये है कि इसका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और बढ़ता जाएगा। न सिर्फ अलग दिखना है, लेकिन इंडस्ट्री प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, प्रोडक्शन से। जिसके प्रोडक्ट में दम होता है, चाहे वो बेस्ट प्रोडक्ट बेसिक यार्न का हो चाहे फैंसी का हो, सबको बेस्ट ही चाहिए। पहले कपड़ा हल्का होता था तो बिक जाता था, अब नहीं बिकता है। तो परफेक्शन से फैंसी यार्न बनाने के लिए और कस्टमर को एक्चुअल क्या चाहिए, उसके लिए एक क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है, जिस क्लस्टर में फाइबर से लेके और गारमेंट तक के सभी लोग इन्वॉल्व हैं। और वो ट्रेंड अगर हम बनाते हैं तो कई बार हम बोलते हैं यार चाइना ट्रेंड बनाने में सफल हो जाता है, यूरोपियन कंट्रीज जहाँ फैशन चलती है वहाँ से ट्रेंड आते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। हम भी ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लस्टर नहीं है, न हमारे पास वैसा सिस्टम है पूरा। अगर वो सिस्टम डेवलप करें तो इंडिया में जितना दिमाग है उतना दिमाग वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और ये तो अपना वैसे ही खुराफाती दिमाग है, फैंसी यार्न बनाना तो खुराफाती है, जो समझ में आ गया वो बनाना है। तो हम लोग सब लोग मिलके ये काम करें, पूरी चेन अगर मिलके काम करें तो फैंसी यार्न का कल्चर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और इंडिया खुद इमर्जिंग कंट्री है। आज इंडिया का परचेज पावर चाहे कुछ भी है, लेकिन 2030 तक डबल हो जाना है, जिस हिसाब से ग्रोथ फेज चल रहा है। तो इंडिया में भी जो फैंसी फैब्रिक है, जो हाई वैल्यू फैब्रिक है, उसका मार्केट बढ़ रहा है। तो हमें अच्छा बेसिक यार्न का कपड़ा भी बना भी लेते हैं तो कपड़े वाले को कोई मिलता नहीं है। आज की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, यार्न में कुछ नहीं मिलता, कपड़े में कुछ नहीं मिलता, गारमेंट में कुछ नहीं मिलता। तो आगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो ही अपनी इंडस्ट्री चल पाएगी। तो अगर 25% भी अपने सारे प्रोडक्शन का हम लोग फैंसी पे कन्वर्ट करके उसको बेच पाए, तो मेरे ख्याल से जो समस्या आज हम महसूस कर रहे हैं इंडस्ट्री की, जो पिछले 1.5-2 साल से इंडस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है, इसमें भी कई लोग जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है वो अच्छा कर रही है। जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट हो उनके अच्छे प्रोडक्ट अच्छे रेट से भी बिके, लेकिन परफेक्शन सबको चाहिए। और फैंसी यार्न बनाना या फैंसी फैब्रिक बनाना, इसमें खुद को लगना पड़ता है। ये पैशनेट लोगों का काम है। ये प्रोफेशनल लोगों से बन जाते हैं, लेकिन बना के बेच के कंटिन्यूस उसको आगे बढ़ाते रहना, इसके लिए खुद को फिर पूरी पेशेंस से काम करना पड़ता है। और पेशेंस के साथ पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि धागा के भी कई बार बनाते हैं नहीं चलता है, फिर अचानक डिमांड आ जाती है। तो नया ट्रेंड अगर कोलैबोरेशन से करें 2030 तक, फैंसी यार्न का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर आदमी को नया चाहिए, हर आदमी को नया दिखना है, तो टाइम अच्छा है। अगर हम प्रोडक्ट को क्लिक कर पाए तो मेरे ख्याल से मार्जिन्स भी कवर कर पाएंगे। बस मुझे इतना ही करना है। आप सबका कोई थैंक यू वेरी मच महेश महेश्वरी जी। इन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई कि जैसे कहा कि डिफेक्ट को इफेक्ट में, मतलब ये इंडस्ट्रीज के कुछ राज होते हैं जो आज खुल रहे थे कि डिफेक्ट को इफेक्ट में कन्वर्ट करके कैसे फैंसी यार्न हम बेचते हैं। और उन्होंने कुछ बातें जो हमें बताई कि कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और पैशन और पेशेंस दोनों चाहिए, और उसके साथ हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकेंगे। इनके लिए भी जो भी सवाल है वो हम बाद में लेंगे। कभी तक हमने जरी के बारे में समझा, फैंसी यार्न इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम बात करते हैं नायलॉन इंडस्ट्रीज़ के, और उनके हमारे स्पीकर हैं संजय मेहत्रा जी। उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर से एक बार मैं इन्वाइट करना चाहूँगा उमेश कृष्णन जी। फ्रेंड्स, हमारे अगले स्पीकर जो हैं वो श्री संजय मेहरोत्रा जी हैं, जिनको मैं सालों से जानता हूँ। ही इज़ अ टेक्नोक्रेट और नॉट ओनली नायलॉन, उनको ऑलमोस्ट सब यार्न के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने पॉलिस्टर और नायलॉन दोनों फील्ड में एक्सपर्टाइज किया है। उनको रेमंड सिंथेटिक्स, एशिया पैसिफिक, इंडोनेशिया, लोहिया मशीन का एक्सपीरियंस है। As of now, he is marketing president of Century Anchor Limited, and he is the president of the Nylon Spinner Association as well. इनका 35 years का एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो आज हम सुनने जा रहे हैं। So I request श्री संजय मेहरोत्रा to give his speech. Thank you. इट्स ओके। हाँ, तो आज अभी हम लोग
एमर्जिंग नायलॉन ट्रेंड्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें बिफोर वी जंप डायरेक्टली टू नायलॉन ट्रेंड्स, मैं ब्रीफली थोड़ा सा नायलॉन को टच करना चाहूँगा। अपने शायद यहाँ पे काफ़ी व्यूवर्स भाई भी होंगे, तो उसको बताने के लिए कि नायलॉन का कैरेक्टर क्या है, टेक्सटाइल को ओवरऑल सिनेरियो उसके अंदर में कैसा है, इंडियन डिमांड कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या है, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट्स क्या है, और नायलॉन के अंदर में नए यार्न्स की क्या अपॉर्चुनिटी है या नए यार्न्स कहाँ पे अभी आने वाले, जब हम 2030 की बात कर रहे हैं तो नए यार्न्स इंट्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि नायलॉन का क्या चेन है हमारा। जैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी नोइंग ओनली विद द जेनरिक नेम नायलॉन, पर नायलॉन भी जो है 4 तरह से आ रहे हैं। इंटरनेशनली नायलॉन 6 है, 6 अवेलेबल है, नायलॉन 11 है, मतलब जिसको PA11 करके पॉपुलर है, देन PA12 है। तो ये 4 तरह के नायलॉन है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी ठीक है, काफ़ी मतलब वैल्यू चेन बिल्डअप हो रही है, बट स्टिल वी आर मिसिंग इन सर्टन नायलॉन कैटेगरीज। जैसे अभी बायो बेस है, PA11 का जो है, it is not being manufactured, means the polymer is not being manufactured in India, but of course we have taken an initiative for production of the nylon PA11 here spinning stage पे। So this is a brief introduction. Okay, again nylon is a synthetic value chain है and crude derivative ही है, and this is the basically 2 major consumptions इसके आते हैं, जैसे engineering plastic and the fiber। तो this is a broad depiction of the nylon chain। देन अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई वाई नायलॉन व्हेन द पॉलिस्टर इज अवेलेबल, विस्कोस इज अवेलेबल, वाई नायलॉन। तो नायलॉन के अंदर में और नायलॉन का क्या फ्यूचर आगे रहने वाला है। तो नायलॉन का जो मेजर स्ट्रेंथ है टिल डेट, इट रिमेन्स इट्स अ वेरी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सिंथेटिक पॉलीमर, इट्स इजी डाइंग, ब्राइट कलर, सॉफ्ट फील, हाई एब्रेजन स्ट्रेंथ, लो पिलिंग। ये जो नायलॉन के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट नायलॉन को एक बहुत ही वर्सेटाइल फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर में इसीलिए आप देखेंगे नायलॉन जो है एक तरफ तो अपैरल्स में है, एथलेजर में है, स्पोर्ट्स वियर में है, दूसरा इसका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में भी काफ़ी बड़ा यूजेज है आज। तो नायलॉन मतलब आपका दोनों तरफ, मतलब इंजीनियरिंग एंड यूजेस में, मोल्डिंग एंड यूजेस में, एज वेल एज apparels के अंदर में there is a very big consumption and there is a lot of possibilities are there। ठीक है, this is a broadly comparative properties, with the limited time I will not explain। The basic point remains that strength, elasticity, abrasion resistance, ये इसके and softer feel and easy dryability, ये main इसके नायलॉन के attributes हैं। Now we are come to the just Before we jump to the trends, we have to understand कि नायलॉन आज कैसे कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो चाइना जो है इसके अंदर में, अगर इंडिया और उसकी बात करें तो चाइना स्टिल डोमिनेट्स द 75% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। अगर मैं इसके अंदर में CAGR की बात करूँगा, तो नायलॉन बीइंग an expensive fiber, definitely the market share has been taken away by the polyester। बट स्टिल नायलॉन अगर आप CAGR देखें और टिल 2030 व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर में 2 से 3% का ग्लोबल लेवल पे हम CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसकी ग्रोथ जो है एक कंसिस्टेंट बेसिस पे इसकी ग्रोथ बनी रहेगी। ग्लोबली नायलॉन का मतलब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम देखेंगे तो इंडिया में अभी भी नायलॉन जो है ना हैवीली आपका बायस्ड है टुवर्ड्स एपरल्स, साड़ी, दुपट्टा, नेट्स के ऊपर में, जबकि ग्लोबली वॉक निटिंग, सर्कुलर निटिंग, वोवन, नैरो एंड एक्सेसरीज एंड होजरी, दीज आर द सम ऑफ द फैब्रिक्स व्हाट वी कैन सी कि आज बीच वियर, स्विम वियर, एक्टिव वियर, लॉन्जरी, जैकेट्स, ये सारे जितने भी एंड यूजेस हैं नायलॉन के, ये इंडिया में अभी भी डेवलप होने बाकी हैं। हम इंडिया में जो करंट नायलॉन का कंजम्पशन है और जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो टोटली रिवर्स है। मतलब जो इंटरनेशनली जो उसका कंजम्पशन हो रहा है, इंडिया में हम टोटली अभी भी साड़ी दुपट्टे में ही प्रीडोमिनेटली पूरे अटके हुए हैं।
Now we come to the Indian nylon scenario. Okay, 2000 से अगर हम 2023 तक की बात करें तो as such nylon industry एक healthy grow हो रही है, 7% का हमें CAGR आया है. Totality में out of the total man-made fiber, we are still nylon is only 2% of the market share. But here with the increased consumer awareness, जैसे जैसे consumer awareness बढ़ रही है, लोगों की purchasing power बढ़ रही है, उससे nylon वापस गेम में वापस आ रहा है, क्योंकि now consumer don't mind spending a little more also, but you want a better good quality fabric, softer fabric, skin friendly fabric. So उसकी वजह से जो बीच में till अगर आप 90 से 2000 के बीच का या 2005 तक का पीरियड देखेंगे, उस समय में नायलॉन का काफ़ी डीग्रोथ हो रहा था, बट उसके बाद में नायलॉन के अंदर में हेल्दी CAGR आ रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी रेगुलर हो रहे हैं. अगेन दिस इज अ ब्रॉड कि इंडिया में इंडियन नायलॉन इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है वर्सेस ग्लोबल. लाइक इंडियन इंडस्ट्री इज स्टिल हेवीली बायस्ड टुवर्ड्स द अपैरल, एक्टिव वियर के अंदर में. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग जस्ट टू बिफोर कमिंग टू द मेन ट्रेंड्स. आई एम जस्ट गिविंग सिनेरियो दैट इंडियन नायलॉन इंडस्ट्री जो है आज ग्लोबली जो ट्रेंड्स हैं उससे हम टोटली डीलिंग हैं. व्हाट वी हैव इंडियन नायलॉन इंडस्ट्री टोटली अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है नायलॉन साड़ी एंड दुपट्टा पे ही, जबकि आपका एक्टिव वियर, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, नॉन वोवेंस के अंदर में इंडियन नायलॉन के अंदर में यूजेज है बहुत कम है. ओके, दिस अगेन दिस इज फॉर द what we see that in future what will happen, what everybody is aware that okay, sarees market are with the changing, with the consumer preference, with the new generation youngster coming in, dressing sense getting changed. Sarees of course will, this for the nylon only, this that sarees will remain still remain a big chunk. बट आने वाले दिनों के अंदर में आपका एक्टिव वियर इज गोइंग टू बी द फोकस एरिया एंड एक्टिव वियर विल हैव द मेजर ग्रोथ पोटेंशियल. तो मेरा अपना नायलॉन के कंज्यूमर से वो रहेगा कि दिस शुड बी द फोकस एरिया इन फ्यूचर, बिकॉज आपका फ्यूचर यहीं पे है. एक्टिव वियर के अंदर में वी आर एक्सपेक्टिंग 20% ग्रोथ इन दिस एरिया. This is just to show the trends. हम ethnic wear, साड़ी, dress material, these are the segments where the currently the Indian markets आज जहाँ पे stand करता है. ये आपके जो segment हैं, ये stagnant से low growth में रहेंगे. High growth what we are expecting. This is the area where the आज industry को focus करना चाहिए. Active wear, athleisure, seamless garment है. ये potential growth जो है, this is one very big area, medical textile. यहाँ पे नायलॉन में भी काम नहीं हो रहा है. डिफेंस सेक्टर के अंदर में देयर ह्यूज पोटेंशियल एंड वी विल बी टचिंग फॉर द स्पेसिफिक yarns इन द फर्दर. These are some examples that seamless hosiery के अंदर में what are the possibilities, sports wear के अंदर में क्या है और हमारा करंट मार्केट अभी साइज इंडिया के अंदर में क्या है. तो आप देखेंगे आउटर वियर, आउटडोर गियर, these are the there's a lot of potential there. If we come out from our traditional end uses, नायलॉन के अंदर में immense potential है. Again in the inner wear also, क्योंकि नायलॉन एक बहुत ही स्किन फ्रेंडली फाइबर है, तो वहाँ पे इनर वियर के अंदर में भी शेप वेयर, बीच वेयर, स्विप वेयर, these are the all end users, इंटरनेशनल एंड यूजर्स जहाँ पे नायलॉन यूज हो रहा है. इंडिया में सारे एंड यूजर्स अभी भी मिसिंग है. So there is a huge potential for that. अगर हम जब नायलॉन ट्रेंड की या नायलॉन के टेक्सटाइल्स का आगे फ्यूचर का ट्रेंड की बात करें कि आने वाले 5 साल में 6 साल के अंदर में इंडस्ट्री का क्या डिमांड रहने वाला है, क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो दीज आर द सम ट्रेंड्स व्हाट वी परसीव दैट ये आप जो ब्रांड की डिमांड आ रही है या विद इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस जो आ रहा है,
सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस टेक्सटाइल का आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। सर्कुलर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, जहाँ पे आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में ऑलरेडी बिग ब्रांड्स हैव टेकन इनिशिएटिव, जहाँ पे आपका यूज्ड गारमेंट वो कलेक्ट करते हैं, then that garment is converted into fiber, then that is converted into yarn. So that is the whole cycle you are completing. So sustainable high performance textiles, circular economy, smart textiles. आज स्मार्ट टेक्सटाइल्स के अंदर में नायलॉन इज द आइडियल फाइबर। लाइक जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, whether आप जैपनीज मार्केट की बात करें चाहे यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, स्मार्ट टेक्सटाइल्स के अंदर में जितना भी एम्बेडेड आपका कंडक्टिव टेक्सटाइल्स का हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द नायलॉन बेस्ड पॉलीमर्स ओनली। फिर नैनो टेक्नोलॉजी इन नायलॉन, या नैनो टेक्नोलॉजी इज हैविंग अ वेरी बिग फ्यूचर फॉर मेकिंग नायलॉन यार्न्स, जहाँ पे आप बहुत सारे फंक्शंस जो हैं आपके, एंटी माइक्रोबियल है, यूवी है, एनहेंस्ड विकिंग प्रॉपर्टीज है, तो मेडिकल टेक्सटाइल्स के अंदर में नैनो टेक्नोलॉजी आप के प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं, और ये फ्यूचर के अंदर में ये आपका ट्रेंड रहने वाला है। नाउ इमर्जिंग यार्न ट्रेंड्स, अगर हम स्पेसिफिक अपने जो ट्रेंड्स की बात करें तो फंक्शनल यार्न्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। बेसिकली हम अभी तक जितने भी बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट द बेसिक DTY और FDY, बट इन कमिंग डेज और इन फ्यूचर आपका जो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है या कंज्यूमर की जो नीड बेस होगा, वो आपको बेसिकली along with the basic apparels you need certain functional properties in the yarn. तो functional properties के अंदर में still there is a lot of yarns available. Century Ink is already taking initiatives and many of these yarns are available with us or at the experimental stage. तो हम बहुत happily आपको कोई भी आपका जो है requirement है या कोई भी आपकी नीड बेस, आपको कोई भी फंक्शनल यार्न्स जहाँ पे भी चाहिए, वी आर रेडी टू सपोर्ट टेक्निकली फॉर डेवलपमेंट, ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम आवर टीम्स। तो इसके अंदर में ऐसे कुछ बेसिक यार्न्स जैसे हैं, एंटी स्टैटिक यार्न्स हैं, कंडक्टिव यार्न्स हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफेक्शियस यार्न्स, यूवी प्रोटेक्शन, ये सारे यार्न्स हम बना रहे हैं, हम ऑलरेडी बना रहे हैं ये यार्न्स। आपको यूवी प्रोटेक्शन हम रेगुलर बनाते हैं, एंटी इन्फेक्शियस है, एंटी माइक्रोबियल है, फ्लोरोसेंट यार्न्स हैं, ये भी हमने अभी रेंज बनाई है। IR यार्न्स जो है डिफेंस के लिए अंदर कैमोफ्लेज के लिए, दिस इज अ न्यू एरिया, न्यू रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री, वेयर इन द नाइट विजन यू कैन नॉट कैच द सोल्जर्स। तो कैमोफ्लेज के अंदर में ये यूरोपियन प्रोडक्ट है, बट इसके अंदर में हमारे यहाँ पे इसके डेवलपमेंट चालू हैं। तो दीज आर द फर्दर आगे की जो रेंज है। इंफ्रारेड है, एंटी येलोइंग है, वाटर रेपेलेंट है, एनायन फाइबर्स है, मॉइस्चर विकिंग, थर्मोस्टैटिक, लो मेल्ट, हॉलो क्रॉस सेक्शन, थर्मल स्टोरेज। तो मेनी ऑफ दीज यार्न्स, जितने भी आज हम फंक्शनल यार्न्स की बात करते हैं, व्हाट वी डू एट इवन एट द, मैं बोलूँगा सूरत के अंदर में सिंथेटिक यार्न इंडस्ट्री इतना बड़ा है, बट अभी भी वी हैव, हम बिल्कुल टिप पे हैं, आइसबर्ग के टिप पे हैं। वी इंडस्ट्री इज नॉट एट ऑल यूजिंग द फंक्शनल यार्न्स। अभी हम बिल्कुल वी आर स्टिल स्टक इन द ऑल कमोडिटी प्रोडक्ट्स। तो देयर इज अ इमेंस पोटेंशियल वेयर आप जो अपने हम वैल्यू एडिशन की जब बात कर रहे हैं, हाई फंक्शनल फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली लॉट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डन फ्रॉम these type of yarns. Next, इको फ्रेंडली, इसके अंदर में जैसे अभी वी ऑल नो, सबके माइंड में ये रहता है कि नायलॉन सिंथेटिक बेस है, इवन सम पीपल यूज्ड टू से इट्स प्लास्टिक, बट नाउ इवन फ्रॉम द कॉर्न नायलॉन हैज बीन डेवलप्ड, from the castor oil bio-based nylon has come in the market. Recycled yarns, chemically recycling, Century Ink we are already doing in a big way. We are doing exports to European market, to US market, so all these products are available. Biodegradable is also one of the product which is biodegradable nylon again.
फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है अदर देन एपरल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आपका नायलॉन्स के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल का, जहाँ हाई डेंसिटी FDY yarns है, रॉ वाइट्स में है, डोप डाइड में है, ये सारे प्रोडक्ट आपको सेंचुरी में मिलेंगे। हाई डेंसिटी विद UV एंड एंटी माइक्रोबियल है, aramids, para aramids. Of course, we are not making aramids and para aramids, but these are the some trends which will be definitely coming in the which have already started coming. तो बाई कंपोनेंट पॉलिस्टर और नायलॉन के कंपोजिट्स हैं, स्ट्रेच यार्न्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, वी आर आल्सो डूइंग इन अ बिग वे, मेलांज है, फ्लेम रिटार्डेंट यार्न्स हैं। सो दीज आर द सम यार्न्स व्हिच आर यू कैन से फ्यूचर ट्रेंड जो है। बेसिकली आप when you want to enter into technical textile or into the functional textiles, these will be the products, and we have to come out from the basic FDY or the TTY yarns what we are doing currently. So I think with these type of the yarns only, industry का future जो है, we will be able to add value to the products, and we will future lies here only. Thank you. Thank you very much for excellent insight on nylon yarn. और उन्होंने जो कुछ बात बताई उनमें से समझने जैसी दो तीन चीज़ें ये थी कि इंडियन कंज्यूमर जो अभी नायलॉन यूज़ कर रहा है और ग्लोबल कंजम्पशन जो है, उस दोनों चीज़ों को अगर हम नायलॉन के साथ जुड़े हुए तो समझने की ज़रूरत है। और साथ में ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो ट्रेडिशनल तरीका जो है या हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे बाहर निकल के ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें नायलॉन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, नायलॉन यार्न के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट स्पीकर एंड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आवर नेक्स्ट स्पीकर। वंस अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री उमेश कृष्णानी जी फॉर आवर टुडेज लास्ट स्पीकर इंट्रोडक्शन। थैंक यू चिराग भाई। जैसे मैंने बताया कि ऑल यार्न्स, उसमें से नायलॉन, कॉटन, ये सब का जो फ्यूचर है 2030 का, वो तो आपने सुन लिया। अभी जो पीक फाइबर है, जिस पहले कॉटन हुआ करता था, अभी जैसे पॉलिएस्टर, उनके जो मेन स्पीकर हैं श्री असीम पान। श्री असीम पान जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के FDY ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है, इज हैंडलिंग 3600 करोड़ का बिजनेस हैंडल करते हैं। मिस्टर पान इज ऑल्सो टेक्नोक्रेट और यार्न और कपड़े के माहिर हैं। मैंने इनके साथ बहुत सालों से काम किया है और उनका स्पेशलिटी ये है कि वो कोई भी यार्न को कपड़े तक ले जाके ही छोड़ते हैं। मतलब कोई भी नया यार्न इंट्रोड्यूस करना है तो जब तक उसका प्रोसेसिंग हाउस में जाके सेट नहीं होगा, कपड़ा मार्केट में नहीं आएगा, तब तक वो उनके पीछे पड़े रहते हैं। और इनका जो जर्नी है, दैट इज फ्रॉम टेक्निकल ऑफिसर टू वाइस प्रेसिडेंट। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सच अ लर्नर पर्सन मिस्टर असीम पान टू नो अबाउट 2005। All, my sincere thanks to Vijay Bhai for arranging this seminar and inviting from fraternity from polyester, nylons, spun, jerry segment to update Surat industry about the latest development or the upcoming developments. My co-speakers Sanjay ji, Mahesh ji and Mahendra ji. Mahesh ji, by the way, had uplifted me today. So I have become one of the many entrepreneurs relative Ajim Premji. So Mahesh ji, I am Asim Pan. I would be happy to be Ajim Premji's anybody relative, no issue like that. So my only request, I will try to complete it in 15 minutes, but for polyester के इतना बड़ा सब्जेक्ट है और polyester इतना बड़ा है तो 15 मिनट में कवर करना really very difficult. तो थोड़ा बहुत टाइम शूट अप हो सकता है। कृष्णानी जी, सेजल, आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ओके, थैंक यू। So little bit of disclaimer that this presentation will use some of the forward-looking statements like future demand or concepts, judgment,
एंड आवर द नंबर्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions जजमेंट. So definitely this may vary from time to time, but most often in majority of the cases we have seen whatever projections we had given earlier. आज से 5 साल 10 साल पहले जो भी प्रेजेंटेशन दिया है, barring the COVID period छोड़ के बाकी almost the projections were turned out to be correct. तो आज का ये फ्लो ये रहेगा, थोड़ा करंट ग्लोबल लैंडस्केप एक बार डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है. देन 2030 एक स्नैपशॉट हम डिस्कस करेंगे 2030 में क्या हो सकता है, एंड देन पॉलिएस्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकता है, एंड देन रिलायंस राइट पार्टनर एट द राइट टाइम. सो लाइक ग्लोबल sorry just give me 1 second. So current global situation is like we are working on a tightrope. We are working on a very very cautious way, and the reason is कारण ये है कि अभी current situation तो अभी एज यू ऑल नो दैट कि हमारे अभी जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, ताइवान चाइना का वॉर चल रहा है, एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्लोबल एंड OPEC plus decisions of crude cut, we are passing through a severe energy crisis. The energy crude oil prices, sometimes it is going to $120 barrel per barrel in July 2022 to currently in $76 per barrel. So there is a huge fluctuation going on in the crude, and our polyester raw material is crude, so we are passing through some geopolitical conflicts. These are affecting our economy. Financial crisis, global inflation, US 4.1%, European 5.1%, and interest rate increase हो रहा है. Then we have the Chinese real estate crisis, debt crisis. Evergrande is a Chinese real estate company. That is the second largest Chinese real estate company, and they have declared as the bankrupt, and their debt is $300 billion. Can you imagine what is $300 billion? It is more than 2,50,000 crores, $300 billion. Second is Country Garden. This is also one of the Fortune 500 company in rank, probably somewhere 200 के आसपास इनका Fortune 500 में rank है. इन्होंने भी $186 billion का debt है, so they are also into that. China bullet train, they are into $900 billion. $900 billion means almost 7,50,000 crores. Then we are also passing through COVID-19 residual impact. तो ऑलमोस्ट हमें ये पता है कि COVID-19 चला गया है, बट स्टिल उसका अभी भी इफेक्ट अभी भी इकोनॉमी के ऊपर उसका इफेक्ट है. देन ओवर कैपेसिटी इन चाइना में जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है, ये कैपेसिटी एडिशन काफ़ी नॉट एज पर प्लान हुआ है. आज डाउन स्ट्रीम में जितना होना चाहिए था उससे अप स्ट्रीम में हुआ है, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में भी काफ़ी जितना डिमांड है उससे ज़्यादा हुआ है. सो दिस इज बेसिकली प्राइस एंड मार्जिन डिस्ट्रक्शन किया है, नॉट ओनली चाइना में बट along with this globally. So challenge, we are now passing through challenges on multiple fronts on global economy. So coming to textiles now, कल जो भी रघुनाथ जी का इनॉग्रेटिव स्पीच सुना है उसमें ये चैप्टर उन्होंने टच किया था कि आज देखिए टेक्सटाइल में जो ग्रोथ है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक इज नॉन लग्जरी आइटम एंड वन इज द लग्जरी आइटम. अगर आप कोविड का ईयर आप छोड़ दीजिए 2020, उसके बाद अब 21, 22, 23 में हमने फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ हमने डिवाइड किया है H1, H2. तो आप देखेंगे कि नॉन लग्जरी आइटम में जितना ग्रोथ हो रहा है सिर्फ 9%, तो लग्जरी आइटम में फॉर यूरोप द ग्रोथ इज 16%. नेक्स्ट ईयर इट इज 13%, लग्जरी आइटम में 16%, 5% वर्सेस 10%. सेम इज द केस विद US.
जहाँ पे 2% था लग्जरी आइटम में आपका 10% है, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे 1% है, एंड चाइना ऑल्सो सेम। सो ये क्या बताता है कि जो लोगों के पास परचेसिंग पावर है और जो नॉन लग्जरी आइटम से लग्जरी आइटम में लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। सो फ्यूचर में आपके लिए भी एक डायरेक्शन देता है कि क्या बनाना है, मुझे लग्जरी आइटम में जाना चाहिए, नॉन लग्जरी आइटम में जाना चाहिए। दिस स्लाइड क्लियरली शोज दीज आर द ट्रेंड्स जो 2030 में आपको दिखेगा। सो वन इज इंक्रीजिंग रीजनलाइजेशन सप्लाई चेन्स। पहले इट वाज टोटली फोकस्ड ऑन चाइना सेंट्रिक था, अभी चाइना से ये डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। देन एक्सट्रीम वेदर एंड इवेंट्स लीडिंग टू सप्लाई चेन रिस्क एंड कॉस्ट। देन आपका आप देखेंगे कि अभी आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्टिविटी गेन हो रहे हैं। जितना भी आपका मशीन आज मॉडर्नाइज हो रहा है उतना प्रोडक्टिविटी गेन हो रहा है। देन यूरोप, चाइना, इंडिया, they will continue to produce service leadership even at the expense of market opening policies. Demographics to change हो रहा है, that will be boon for developing countries, advanced economies, and China to be beset by shrinking labor force. China में labor force बहुत ही shrink हो रहा है. This is a major worry of concern and good for us also. Now coming to global polyester growth. तो आज आप देखेंगे द डेटा इज 2019 to 30। तो 2019 में आज हमारा ऑल फाइबर का डिमांड था 104 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, जो 2030 में 135 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम होगा। 30 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम विल बी द इंक्रीमेंटल डिमांड फॉर टेक्सटाइल बाय 2030। जो 30 मिलियन मेट्रिक टन्स का डिमांड बढ़ेगा उसमें 2 मिलियन मेट्रिक टन आएगा कॉटन से। हम सब पता है कि कॉटन का ग्रोथ नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड, इट डिपेंड्स अपॉन गुड मॉनसून, एंड जो बीटी कॉटन आपका जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट इट रीच्ड एट पीक। बाकी आपका जो मेजर 28 मिलियन मेट्रिक टन्स आएगा ये मैनमेड फाइबर से आएगा, एंड मैनमेड फाइबर में भी इसका मेजर शेयर आएगा पॉलिएस्टर से 23। सो बाय 2030 those who are in polyester will be lucky that 70% of the growth will come from polyester. Global population current 7.7 will reach up to 8.5 billion. Per capita textile consumption will go up from 14.3 to 16.4. Incremental fiber demand जैसा हमने मेंशन किया है 30 मिलियन मेट्रिक टन्स, उसमें से 23 will be from the polyester. So polyester will be the lion's share from additional fiber demand. तो ग्लोबल फिलामेंट आउटलुक का ब्रेकअप है। आप देखेंगे कि ग्लोबली 2022 में 54.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, प्रोडक्शन वाज 41.1, ऑपरेटिंग रेट वाज 76%। द सेम थिंग इन चाइना वाज 71%। आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग रेट इन चाइना इज मोर और लेस 71% टू 77, 79, 74%। हम ये समझते हैं कि दिस विल गो अप बिकॉज चाइना में आगे जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है वो कैपेसिटी एडिशन इतना नहीं हो रहा है, डाउन अपस्ट्रीम का कैपेसिटी एडिशन जितना हो रहा है डाउनस्ट्रीम से ज़्यादा हो रहा है। सो डेफिनेटली ऑपरेटिंग रेट बढ़ेगा। कमिंग टू इंडिया, आप इंडिया में आप देखिए वर्ल्ड का जो जीडीपी ग्रोथ है 3 है, इट इज कांस्टेंट है। एडवांस कंट्रीज में 1.5, 1.4, लिटिल बिट गोइंग डाउन। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग में 4 to 4.1 ऑलमोस्ट सेम। चाइना इट इज स्लोइंग डाउन 5.2 to 4.5, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे आप 6.1 का 6.3 होगा बाय नेक्स्ट ईयर, इट इज ओनली इन 1 ईयर। सो इंडिया पॉइज्ड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ ये स्लाइड ये बताता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है लोग कितना गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। सो गांव से शहर में शिफ्ट होने से होगा क्या? गांव से जब शहर में शिफ्ट होता है, जैसा कल रघुनाथ जी बताए थे कि लोगों का एस्पिरेशन चेंज होता है। जैसा पहले हमारा जो एस्पिरेशन था, जैसे आप शहर में आया आपका एस्पिरेशन चेंज होगा, आपका परचेस भी बढ़ेगा। तो दिस विल ऑल लीड टू टेक्सटाइल कंजम्पशन।
दिस इज डेमोग्राफी जो है इंडिया में। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया का मीडियन एज 31 और जो एज के हिसाब से जो है, जैसे ऊपर का रेड पोर्शन है दैट इज 60 to 64 एंड अबव 65। दिस आर द एज जो ऑन रिटायरमेंट, दे आर ऑन पेंशनर्स बेसिकली। सो पेंशनर्स जो क्या है कि दे डोंट स्पेंड ऑन मनी ऑन फैब्रिक और एनीथिंग। सो ये आप देखेंगे कि इंडिया में दिस इज द लिस्ट। सो इंडिया में आप देखेंगे जो कर्व है, ये कर्व में ये बताता है कि 20% ओनली डिपेंडेंट है, बाकी रेस्ट आर इंडिपेंडेंट। सो डेफिनेटली परचेस पावर इंडिया में बिकॉज ऑफ द लो एज विल डेफिनेटली गो अप। नाउ कस्टमर प्रोफाइल कैसे चेंज हो रहा है। पहले अभी क्या था कि आपका शॉपिंग, आपको जब भी जरूरत होता था तब आप शॉपिंग में जाते थे। अभी आपका जरूरत नहीं है तो भी हम आज मॉल में पिक्चर देखने गए तो भी हम वहाँ से विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं। पहले हम लोग एक ब्रांड लॉयल थे। टुडे यंग जनरेशन आर एक्सपेरिमेंटल, दे विल डू ऑन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, आज का दिन में सुपर इंफॉर्मेशन है। आज आप एवरी फैब्रिक में किससे बना है, क्या परसेंटेज है, उसका आयरन क्या कैसे करना है, वॉश कैसे करना है, एवरीथिंग इज देयर इन्फॉर्म। सेम वे हमारे टेक्सटाइल में भी पहले कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थे, आज तो PTMEG का प्राइस भी वहीं से शुरू होता है। तो देन पहले कन्वेंशनल चैनल्स थे, आज आपका वैल्यू परफॉर्मेंस है एंड वांट्स टू बी परसीव्ड एज इको फ्रेंडली। नाउ कमिंग टू स्पेशलिटी प्रोडक्ट। सो आप देखेंगे कि लास्ट डिकेड जो था उसमें मेजॉरिटी वाज कमोडिटी फाइबर। करंट डिकेड में जैसा संजय जी ने भी बताया कि फंक्शनल फाइबर का डिमांड आ रहा है, फंक्शनल पीपल वांट फंक्शनलिटी। आज का दिन में जो भी यंग जनरेशन है दे वांट फैब्रिक नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक ब्यूटी हो, उसके साथ साथ इसमें कुछ फंक्शन भी हो। एंड फॉर द नेक्स्ट डिकेड इट विल बी स्मार्ट फाइबर। स्मार्ट फाइबर मीन्स फैब्रिक मेड फ्रॉम स्मार्ट फाइबर। संजय जी ने बताया काफ़ी सारे फैब्रिक एप्लीकेशन, दे शुड परफॉर्म लॉट ऑफ ड्यूटीज, लॉट ऑफ applications like आज आपका for some examples like एक safe memory fabric है जहाँ पे वो fabric it will come back to its original form। photochromatic fabric है, it will change its color as per light, even it can change its pattern as per light। there are lot of medical application में बहुत सारे होता है। तो आज आप all these details of the fabrics like easy care, wrinkle resistance, stain resistance, fade resistance एंड इसका जो आप देखेंगे कि कस्टमर अवेयरनेस आज का दिन में इट इज गोइंग अप। सो आज इजी केयर, रिंकल रेजिस्टेंस, स्टेन रेजिस्टेंस 74%, 60%, 75% ऑफ द कस्टमर्स आर अवेयर। दिस इज अ सर्वे डन अमंग दोज हु हैव डन परचेसेस एंड उसमें ये देखा है कि जो 38% परचेस किया और उनके अंदर 75% अवेयरनेस है। सो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर फॉर फंक्शनल, नॉट दैट कि सबको सस्ता ही चाहिए। So these are all the future trends like R Elan category में हमारे आता है first green gold। Green gold is our recycled, we will discuss in details। Then eco gold is biodegradable, अपने स्टॉल में भी काफ़ी लोगों के पास देखे होंगे। सिक्रो टेक्नोलॉजी, एंटीमाइक्रोबियल, फील फ्रेश, कूलटेक्स, एयरलाइट। एयरलाइट gives us thermal insulation and it's also lightweight। Then all क्लाइमा इज अ प्रोडक्ट जिसका फैब्रिक आपको जब ठंडा है ठंडी में आपको गर्म रखेंगे, गर्मी में आपको ठंडा रखेंगे। देन कॉट लुक्स एंड फील लाइक कॉटन, सॉफ्ट टच विद रिच फील, सुपर फील, सुपर ब्लैक, फ्री फ्लो। सारे फैब्रिक का सैंपल हमारे स्टॉल में अवेलेबल है, एनीबडी कैन कम एंड सी एंड गेट डिटेल्स। सो दिस इज रिसाइकल्ड, bottle sourcing to bottle flake washing, then cleaning of flakes, then flakes to fiber, then FDY, PY, textured, then fabric to garment। So green gold का benefit क्या है? This is environment friendly, आपका carbon footprint reduction by 30%, free from harmful chemicals and 90% of water recycled है। ट्रेसेबिलिटी है, हमारा जो ग्रीन गोल्ड है उसमें वी आर एडिंग ट्रेस
physical traceability as well as digital traceability. Dyeing performance is enhanced whiteness है, color variants है, and then customizations. Like आपको अगर recycled में green gold में अगर किसी को film fresh का properties भी चाहिए वो भी हो सकता है, किसी को cool-tex का properties चाहिए हो सकता है, किसी को अगर उसमें UV protection चाहिए तो that is also possible. These are all our manufacturing facilities and tests. This is Eco Gold. Eco Gold is biodegradable polyester. So this is a concern, major concern for us, for all of us. So biodegradable. You are adding some chemicals. जिसमें इसमें आपका माइक्रोब्स को जनरेट किया जाता है जो पॉलिएस्टर को खा जाता है बेसिकली. इट डिग्रेड्स पॉलिएस्टर. So these are all number of days by which it can be biologically degraded. In soil it is 88%, 742 डेज में हो जाएगा, 92% इन सी वाटर में हो जाएगा, 91% इन लैंडफिल में हो जाएगा. ये सारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी एनी फर्दर टेक्निकल डिस्कशन के लिए हमारे रिलायंस में फिलामेंट के डेवलपमेंट हेड मिस्टर विजय गर्ग इज विद अस. यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद देम. These are all sustainable जो अभी हमने बताया. ग्रीन गोल्ड है, इको गोल्ड है, जिसका एट्रीब्यूट्स बताया. एप्लीकेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसमें एज वेल वेयर ओवन एंड नेट्स ही मिलेगा. बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकता है. होम टेक्सटाइल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. डेनियर रेंज, normally these are the denier range, most popular denier range, denier and filament, but we can produce any kind of denier filament combination. So these are hand tags we are giving for our customers, end customers, जो हमारा कपड़ा लेके गारमेंट बनाएंगे उनके लिए है. And some of the benefits is कि inherent antibacterial, antiviral for better hygiene. और ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये सारे हम पॉलीमर के अंदर ऐड करते हैं. तो these are all permanent. It is not after every wash it will fade away. This is Film Fresh. Film Fresh is antimicrobial. You know कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे अंडर आर्म में काफ़ी टाइम में हमने स्वेट होता है और स्वेट होने से वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है. तो ये आपका जो फिल्म फ्रेश है हम लोग इसके अंदर जो सिल्वर आयन डालते हैं, दैट्स एन एक्ट्स एज ए एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल. ये ई कोली, ये सारे वायरस के अगेंस्ट में काम करता है. दिस इज हाई वॉश ड्यूरेबल बिकॉज ये परमानेंट है, पॉलीमर के अंदर हम करते हैं, नॉट एनी ट्रीटमेंट ऑफ लाइक इन प्रोसेसिंग. तो दिस इज ए परमानेंट. दिस आर द डेनियर फिलामेंट रेंज का कॉम्बिनेशन है. मोस्ट पॉपुलर डेनियर फिलामेंट रेंज जो अभी चल रहा है. बट इसके बाहर भी अगर किसी को कुछ फाइन डेनियर चाहिए या कोर्स डेनियर चाहिए तो इट इज पॉसिबल. कूलटेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको ठंडा फील होगा. तो इसमें बेसिकली इट वर्क्स ऑन 3 लेयर्स, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वे. वन इज इट विल देयर आर माइक्रो चैनल्स जिसमें आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्वेट को एब्जॉर्ब करके ऊपर सरफेस पे स्प्रेड होगा एंड स्प्रेड होने के बाद ये इवापोरेट होगा. जितना लार्जर सरफेस पे स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा ये इवापोरेट होगा. दिस इज 3-stage एक्शन. These are the varieties of textured yarn, fancy yarn in Coltex. Fabric samples are available in our stall. Cotlook is one product जिसमें आपको cotton like look, as the name suggests, cotton like look. बेसिकली टेक्सचर्ड यार्न में ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, काफ़ी दिन से चल रहा है. फिलामेंट फैब्रिक से रिसेंट कंसेप्ट एवरीवेयर. So basically it will give you a dull and matte appearance which are imitating to cotton.
इसका ड्रेप अच्छा है, इजी टू वॉश है, मैट अपीयरेंस है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, एंड देयर इज अनदर क्वालिटी विच इज ओपेक फैब्रिक एंड वेरी शार्प प्रिंट इमेज। नॉर्मली आपका रेगुलर पॉलिएस्टर में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहता है, आप कुल्लन में लेंगे तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी कम आएगा। Super feel, as the name suggests, it's a very soft touch and rich feel. Aesthetic beauty is excellent. Special textured and FDY yarns for excellent touch and softer feel. This is very strong and durable. इसका drape very good. All Clima is one product which, जैसा मैंने पहले ही बताया कि you will feel cool in hot and you will feel warm when it is cold. And also this is a lightweight. These are the denier available, 90 denier, 72 filament, 200 piece denier, 160 filament, with spandex मिलेगा, without spandex मिलेगा. This is Airlight. एयरलाइट का फैब्रिक आपको, जैसा अगर आप एक 10 किलो का फैब्रिक है तो उसका जो आपका कवर एरिया है, आपको एयरलाइट में 7 किलो में सेम कवर एरिया मिलेगा. सो इट इज बेसिकली लाइट वेट फैब्रिक. these are further Arilan products like FS जो फ्लेम रिटार्डेंट है, FS फार एंड पेटल, इसका एक क्रॉस सेक्शन यूनिक है, इसका हैंड फील एक क्रिस्प हैंड फील आता है. बेसिकली दिस इज फॉर नॉर्थ इंडिया जहाँ पे आपका शेरपा लाइक और लॉन्ग फाइल फैब्रिक्स जहाँ पे डिमांड में रहता है, उसके लिए रेडकॉन लाइट है, फाइन माइक्रो है, लिनन लाइक है. देन देयर इज वन हाई सिंकेज यान है जिसमें आपको बाउंसीनेस बहुत अच्छा आता है. बबल इफेक्ट आपको फैब्रिक में चाहिए, काफ़ी टाइम में आपको फर्निशिंग में बबल इफेक्ट चाहिए तो उसमें आपको HSY से मिलेगा. So these are all about our apparel. Now I am coming to some of the products which are non-apparel. Non-apparel segment IDY products. So basically IDY is industrial yarn. This is not used for any apparel application. और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये यार्न का टेनासिटी जो है मिनिमम 7.8 से शुरू होता है, 9.5 तक टेनासिटी रहता है, इलॉन्गेशन 14-16, और इसका सिंकेज दो टाइप का रहता है, लो सिंकेज भी रहता है 3.5 to 5% एंड हाई सिंकेज भी रहता है. देन अनदर इज हाई मॉड्यूलस लो सिंकेज. और मोस्टली ऑल हाई टेनासिटी यार्न और IDY इंडस्ट्रियल यार्न स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 denier. पॉसिबल है 500 denier भी, बट मोस्ट पॉपुलर deniers are 1000, 2000, 3000, 4000 up to 6000 deniers. हाई टेनासिटी लो इलॉन्गेशन है जिसका इलॉन्गेशन 10 to 11%. लो इलॉन्गेशन चाहिए काफ़ी एप्लीकेशन में वो फैब्रिक को इलॉन्गेट नहीं होना है. लाइक आज एक जैसा ये आप मोरिंग रोफ्स जिसमें आपको क्रेन वगैरह को उठाता है, उसमें आपका फैब्रिक को इलॉन्गेट नहीं होना चाहिए. तो इसके एप्लीकेशन में बताता हूँ. These are the total pie of all different kinds of IDY, geogrids, fishnet, points, canopies, automotive seat belts, drive belts, lacings. So major is your geogrids and geostraps जो रोड्स में यूज होता है, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है. Conveyor belt 21%, then lacings 21%. These are the major three applications of IDY. Domestic current market is 102 KTA. Laminated fabric, coated fabric, V-belt, hose, conveyor belt, tires, polyester tire cord में यूज होता है. Narrow belts, safety belts, industrial belts, ribbons, slings. एंड देयर आर लो denier जो होता है 500, ये आपको स्विंग थ्रेड में आता है जो पोस्टपान एप्लीकेशन में है, लेदर स्टिचिंग में, कुछ एम्ब्रॉयडरी में, सेल क्लॉथ में. दिस आर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा है. जो आजकल फ्लाईओवर बन रहा है हाईवे में, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाईओवर्स आजकल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनका टेंडर में ये कंपलसरी रहता है, दे हैव टू यूज जियोग्रिड्स. देन रिटेनिंग वॉल है,
सॉइल रीइंफोर्समेंट है, these are all lifting, strapping, lashings, सेफ्टी हार्नेस है जिसमें आपका हेवी वेट को लिफ्ट करने के लिए होता है। इसमें आपको 1 टन, 2 टन, 10 टन, 30 टन्स का वेट तक ये लिफ्ट कर सकता है। These are conveyor belts, transmission belts, mooring ropes आपने देखा है जो सीप को जब वो टाई करते हैं। These are all high tenacity yarn applications। फाइन डेनियर में जैसा पोस्टपान स्टिचिंग थ्रेड में यूज होता है, फिशिंग नेट में यूज होता है, लेदर स्टिच के लिए यूज होता है, जैकार्ड हार्डनेस के लिए यूज होता है, सॉफ्ट लगेज में यूज होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सिमकान जी। और दोस्तों ओके असीम पान फाइन फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन था। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, हमारे देश का सिनेरियो क्या है, हम जिसके साथ सबसे ज़्यादा कॉम्पीट कर रहे हैं चाइना, उसकी फ्रेंड्स प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू रिमेन इन द हॉल फॉर फ्यू मोर मिनट्स। हो सकते हैं आपके सवाल नहीं हो, लेकिन प्लीज रिस्पेक्ट अवर ऑल द स्पीकर्स एंड रिमेन प्रेजेंट इन द हॉल। दोस्तों जो चीज़ें और जो बातें हम लोगों ने अभी सुनी और कही, इनके रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन कैटर फ्यू क्वेश्चंस। और अगर कोई सवाल नहीं तो इन सभी के स्टॉल्स ऑलरेडी हमारे एग्जीबिशन में है, आप पर्सनली वहाँ विजिट करके भी उनके साथ डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स। इफ any question is there, raise your hand, we can take few questions, 3-4 questions, and then we will move towards the end of this program. अगर आपके सवाल है तो 2-4 सवाल को हम ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें शायद इतना समझ में आया होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद IDY में जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया वहाँ सूरत जैसी टेक्सटाइल सिटी बहुत बड़ा योगदान दे सके, उस हालात में हम लोग हैं। शायद हमने उस दिशा में अभी तक सोचा नहीं है, बट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी कैन सी फ्रॉम द लास्ट प्रेजेंटेशन। सो इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर, यस सर प्लीज। आप किन से पूछना चाहेंगे? मैं इनवाइट करूंगा सभी हमारे गेस्ट को कि फिर से एक बार वो मंच पे आ जाए। सो दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू आंसर। All the speakers, please be on the stage. उमेश जी प्लीज आप भी स्टेज पे आइए। सेजल जी प्लीज come on the stage. Yes, your question. Yes, sir. I am Prosenjit Mandal from Guidance Silk Mill. I am also excellence. Actually, it was discussed that IDY production, the denier range is 1,000 to 3,000, which is high denier. I think in India right now, Reliance or Innoson they are making, and this mostly the consumption is going to the industrial application like capsules, fishing nets, whatever it is like that. But there is another segment in mostly in Delhi that is 250 denier, which is going for after twisting and dyeing, that is going for jeans stitching or swing thread. Swing thread application, there is a huge consumption of fine denier like 250 denier and less than 500 denier. Where in India there is no spinners are right now making, except AYM is a very few quantity. So I think there is some scope will be there for the fine denier IDY, because we all know after the implication of BIS we are not getting from China. Earlier it was fully imported from China. It was addition to the main thing. Yes. Yes, Prasenjit, you are right. 250 denier, there are a lot of demands and currently nobody is producing, but AYM is producing, and because it was mostly imported, so people will come up with expansion, and I would like to request you also for Guidance Sanjay, and you propose to come up with expansion in IDI also.
We are coming up with expansion definitely. I think some technical limitation is there. No. There is no technical limitation. Basically, what happens, IDY में जो denier range है, आपका melt throughput के हिसाब से 1000 denier से ये मैच होता है. For fine denier, you need a different kind of setup. तो while AYM है और एक बड़ौदा के पास एक कंपनी है, वो अभी उनका एक्सपांशन फेयर डील नाम है. They are also coming up within very short period of time. उनका भी आ जाएगा. आप लोग भी प्लानिंग कर रहे थे, कर लो. Little more than 8 GPT is required. हाँ. Low, higher linear flow and pedestrian. See, basically it depends upon two things. One is hardware and the other is IV of polyester melt. So it can be done, no issue. Yes, another question. मेरा थेरेपी साहब और पंडिया जरा से हिसाब से जरा प्रेशर है कि उन्होंने जो बात की जो एकेडमिक जरी के उसके बारे में, जैसे हमारे मतलब चैम्बर जो चला रही है टेक्सटाइल के लिए डिफरेंट कोर्सेज, तो ऐसा कोई अभी आगे मतलब सिस्टमेटिकली कोई कोर्स या ऐसा कुछ प्लान है क्या ऐसा? क्योंकि अभी ऐसा कोई भी लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जरी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल है. सर अभी जो आप शायद थोड़ा सा लेट आए होंगे मेरे ख्याल से, जे भारत में से बहन ने बताया कि बहुत सारे कोर्स चल रहा है. हाँ, लेकिन वो तो उसमें ही हम साथ में बैठ के 8 टेन्यूर में ही जरी का भी एक वीविंग कोर्स चालू करने के लिए जा रहे हैं कि भाई उसमें बेसिक जरी का कैसे वीविंग होता है, बेसिक टाइप्स ऑफ जरी क्या है, उसमें उसके ऊपर से जो भी मैं बात की कि ग्लोबल मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, फाइन टू फाइन कट्स क्या है, उसमें हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और वो कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है. तो इसके रिगार्डिंग अभी हम बैठ के एक कोर्स यहाँ पे ही डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आगे होगा तो बाय द चैम्बर्स इट विल बी अनाउंस. थैंक यू. GFRRC का काम यही है कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी डिमांड है, जो भी ज़रूरत है, उन पे वो लोग काम करते हैं. और इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग अभी भी SGCCI के मेंबर्स नहीं हैं वो प्लीज़ SGCCI के मेंबर्स बने और GFRRC की जो भी सुविधाएं हैं उसका पूरा लाभ उठाएं. Yes, last question we will take and then we will end the session. Hello, myself from NEC Media Promotion Private Limited. मुझे पूछना है महेश जी से, ये न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, अभी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी और फैंसियाँ उनको क्या स्टेप्स लेने ये एक्सपोर्टर्स? हाँ, एंटरप्रेन्योर्स है तो फैंसियाँ के लिए उनके लिए स्कोप क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? दोनों यहाँ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी. हाँ, दोनों. फैंसी यार्न का मार्केट रेगुलर स्पीड से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज आर इनडेफिनिट. क्योंकि सबको जब अलग दिखना है तो सबको अलग चाहिए ही है. चैलेंज सबसे बड़ा फैंसी यार्न में ये आता है कि क्वांटिटीज नहीं आती. एक्सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा क्या है, मतलब थोड़ा एंगल अलग होगा ना एक्सपोर्ट में इंडिया इज नॉट नोन फॉर द मास प्रोडक्शन. तो इंडिया से वही चीज़ एक्सपोर्टर मांगते हैं जो एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि हम प्राइस में तो कम्पीट नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिविटी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो फैंसी यार्न इस तरीके से यूज करें कि कपड़ा फैब्रिक एक्सपोर्ट में आराम से बिक सकती है. सस्टेनेबिलिटी हमने अभी चालू की है, पॉलिस्टर फैंसी यार्न में सस्टेनेबल काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो एक्सपोर्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है. और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यार्न को कंटिन्यूस एक साथ बनाना और सेम सप्लाई कंटिन्यूस देना, इट इज़ द बिगर चैलेंज. बनाने को तो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बना के उसको कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी सप्लाई विद द कंसिस्टेंसी इफेक्ट इज़ द मेजर चैलेंज. उसके लिए पैशनेट बंदे चाहिए, आपके फ्लोर पे भी पैशनेट बंदे चाहिए स्पिनिंग में भी, और बेचने वाले भी पैशनेट चाहिए, और जो सबको ड्राइव कर रहा है वो भी पैशनेट चाहिए. कैसे जाना चाहिए या कैसे इसका
आपको बताया कि क्लस्टर बनना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि स्पिनर अपना यार्न बेचने में लगा, वीवर ये सोचता है कि मैं कोई फैंसी यार्न का कपड़ा बना लूँ तो वो मेरी सीक्रेसी मेरे पास है, तो वो हमें उनके कस्टमर से नहीं मिलाते। अगर वो हमें उनके कस्टमर से मिलाएं और उनके कस्टमर को क्या चाहिए वो हम अगर उनको बना के दें तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि फैंसी यार्न बनाने वाला जैसे मैंने अगर बनाया तो किसी दूसरे स्पिनर्स को उसका इतना नॉलेज नहीं होना चाहिए कि मैं ही बेच के मैं ही प्रॉफिट कमाऊँ। ऐसे ही वीवर्स के साथ है, ऐसे ही ट्रेडर्स के साथ में है और ऐसे ही गारमेंटर के साथ में है। तो जितना ज़्यादा ओपननेस होएगी और जितना ज़्यादा क्लस्टर बना के काम करेंगे, मैं एसजीसीसीआई से भी विनती करता हूँ कि स्पिनर से लेके और गारमेंटिंग तक कुछ क्लस्टर बनाए जिसमें फैंसी यार्न के स्पिनर्स भी हो, फैंसी यार्न के व्यूवर्स भी हो। तो जो कई बार चलाने के चैलेंज आ जाते हैं, कई बार डाइंग के चैलेंज आ जाते हैं, तो हम सब मिलके एक प्रोडक्ट को उस लेवल तक पहुँचाए जिस लेवल से वो एक्सपोर्ट हो सके। बढ़िया। GFRC के लिए बहुत छोटा सा असाइनमेंट इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। वी विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट फेलो। सर आप चाहें तो उनके साथ स्टॉल पे जाके डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने जो बताया कि जो अपॉर्चुनिटी और चैलेंज की बात है, तो वो तो हमेशा रहे। हम सब सूरत में रहते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि डिफेक्ट को इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सूरत का लोचा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो डिफेक्ट हो गई थी और उसको इफेक्ट में कन्वर्ट करके आज ग्लोबली उसने अपनी इमेज और डिमांड क्रिएट कर दी है। तो ये ज्ञान में भी हो सकता है और हो भी रहा है। यस, लास्ट क्वेश्चन। Hello, Mr. Pan. Can you highlight on one-to-one denier and what is the potential for this in India? One-to-one denier is if it is a 450 denier, 450 filaments. What it is not being used in China. So can you highlight on this and what is the potential? So 1-to-1 DPF as well as even 0.5 DPF. We are now even producing 0.5 DPF. 75 by 144, 150 by 288. So we can easily make it, no issue. Yes, we are producing. We are producing. We have in textured yarn, we have in filament, everywhere. Roto, yes, we are producing. We are producing. हमारे जितने भी स्पीकर हैं उनके स्टॉल यहाँ नीचे है। Yes. आपका जो बोल रहे थे ना कि ये देखिए, ये सारे बिजनेस के लिए चैलेंजेस ये है कि हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंडिया में, या हमारे ये बहुत छोटे कैपेसिटी का है। आज एक्सपोर्ट में जब बड़े बड़े ऑर्डर अगर आपको कैटर करना है तो उसके लिए स्केल चाहिए, तो स्केल हमारे पास नहीं है। वो वी ऑलवेज थिंक ऑफ कीप पुटिंग 48 मशीन, 56 मशीन, 36 मशीन, तो दैट इज अ चैलेंज रियली फॉर एक्सपोर्ट। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अभी आप सब लोग बांग्लादेश में ये हो गया क्राइसिस, बट यू थिंक ऑफ द इमेजिन द अपॉर्चुनिटीज इन बांग्लादेश, कितना गारमेंटिंग अपॉर्चुनिटीज है। ये एक कंट्री डिस्टेबलाइज हुआ तो उसके लिए हमारे पास कितना ही आना है। 2 कंपनी है जो एक्सपोर्ट गारमेंट एक्सपोर्ट में है। वन इज SK अपैरल एंड द अदर इज गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये जिस दिन बांग्लादेश का इंसिडेंस हुआ है उसके नेक्स्ट 2 days the share price has gone up by 44 to 50% in 2 days. See the imagine the opportunity. Yes. So बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और ये डिस्कशन ऐसा है कि बहुत आगे तक चल सकता है। लेकिन now it's time for formal vote of thanks, and for that I would like to invite Amit Shah from our SGCCI Managing Committee member. Amit bhai, for formal vote of thanks. नमस्कार मित्रों, वोट ऑफ थैंक्स तो एक फॉर्मेलिटी होती है, बहुत ज़रूरी है। यार्न इंडस्ट्रीज 2030 में कैसी होगी ये आप सब ने जाना। जो हिसाब से अभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है और जो हिसाब से मोदी थी गवर्नमेंट में आगे का जो प्लानिंग हो रहा है, वो हिसाब से एक बात तो बहुत तय है कि सूरत और साउथ गुजरात का टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटीज़ आपने जो जाना वो हिसाब से बहुत सारे स्कोप है। ये नॉलेज सेशन ऐसा था कि हम अब यहाँ से कितना गर्व कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है।
आज के यान एक्सपो के सेमिनार में आए हुए हमारे चारों जो गेस्ट हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में ही ऑब्वियसली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला जी, और साथ में ऑफिस बेरर्स और GFRC की जो टीम है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एग्जीबिशन होल्डर्स और कॉलेज लेक्चर से आए हुए सभी स्टूडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में लास्ट ऑफ ऑल हमारे चैम्बर के जो स्टाफ है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी एक मेहनत किया और पूरा एक सपोर्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।